Yes, dear all, I'm audible. Yes, So sir. we are discussing about the various types of patents that was your process as well as design. A part of this, when we talk about the intellectual property right, it also comes coverage for your copyrights, your trademarks, as well as your graphical indications. So let's proceed with the next important concern. What basically your copyright is, as per definition, it is the exclusive right given by law for a certain terms of years to an author, that is composer, to print, publish, as well as sell copies for your original work. Now, question is why we need to pertain for the government protection. So dear all, जैसे कि आप लोगों ने कुछ चीज को परफॉर्म बनाया है, उसको फॉर्मेट करा है, दिस थिंग शुड बिलोंग्स टू यू ओनली, तो उस चीज के लिए हमें गवर्नमेंट प्रोटेक्शन होना जरूरी है. रिवार्ड्स क्रिएटिव एफर्ट्स, exclusive right for limited time, negative right prevent copy or reproduction. Copyright is one of the important part. डिस्कशन की बात करें तो फर्स्ट एक्ट 1914 में फॉलोड हुआ था आपका. इसमें डॉक्टर सो मेनी इंग्लिश एज प्रोविजंस एज वेल इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज एज वेल एज कंसेप्ट आल्सो. व्हेन वी टॉक अबाउट द ड्यूरेशन, तो 60 years, 60 साल आपको मिलेंगे जब से आपने उसको पब्लिश कर दिया है. 60 साल तक वो आपके नाम पे रहेगा. डिपेंड्स ऑन नेचर एंड वर्क ऑफ ओनर ऑफ द कॉपीराइट्स एंड वेन एवर द वर्क हैज बीन पब्लिश्ड. It's all about the idea or not, is it? Copyright in the form of expression, not in an idea. There is nothing in the notion of copyrights to prevent a second person for their producing identical results. Meanwhile, we can say that, for example, one song is formation of lyrics is there. Second is no have no authority to form the same lyrics. That can be formed in another way, but the same content, the same format, as well as the other criteria that should be not same if they have taken the copyright from the government of India. Basically, when we categorize how many types that can be possible for your copyrightable, your original literary, your dramatical, musicals, as well as artistic work, any your particularly films with your cinematograph films, as well as your sound recording. A part of this, your we can say that software provisions, your particular coding for the same, that can also be copyrightable when you have a novel as well as a different idea which is not anywhere possible. Books and the other written materials you may observe as shown in the figure. Yes, dear all, जब बात करेंगे लिटरेरी वर्क की, तो उसमें आपका शॉर्ट स्टोरीज दैट कैन बी आल्सो पार्ट ऑफ दिस, योर पोएम्स, your novels. At the last of this presentation, I will show the many of my poems are already I have taken copyright from the government of India. Books of any subjects which are written by you and having a you have the author for the same. Computer programs, these are also can be possible for your copyrightable. Database that is concerned with your computer data can be also possible, as well as the lyrics of your song, particular poetry, the all things which are belongs to you only, you have, and you are the original as well as first creator of the content that can be possible for the. So dear all, I think both things are observed to you. I have shown one of technical, second is story. You may observe the story of title from gentleman to unacceptable man. And in the technical part, I have published this with the government of India. This was the diet plan, जर्नल फॉलोअप एंड डाइट प्लान फॉर टू गेट दी नॉर्मल BMI. तो ये दोनों में फर्क है, एक आपका टेक्निकल पार्ट में आ रहा है और दूसरा आपका स्टोरी फॉर्म में. सो व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ आइडिया, इट कैन बी पॉसिबल फॉर टू proceed with the your intellectual property rights so that your idea can be visible on the website also. A part of this is your basically music that can be also formed with the help of your copyrightable. A part of this your uh, programmers, manuals, magnetic tapes, disk, computer programs, punch cards, as well as program manuals. These also can be formed in the form of copyrightable. इसको हम copyright के लिए proceed कर सकते हैं with government of India.
5 things that can't be copyrightable. Your science, मान लीजिए कुछ ऐसा साइंस है, कंसेप्ट है जो ऑलरेडी डेवलप है, तो यू कांट से इट्स बिलोंग टू आवर सेल्फ बिकॉज इट है ऑलरेडी फाइंड बेस्ड ऑन लोकेशन। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात करी थी, जैसे पर्टिकुलर चीज़ों के लिए जो फेमस है तो उसका चीज़ों के लिए वो जो प्रोसीडिंग है वो वहीं की रहेगी। डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ क्रिएटिविटी, कुछ ऐसी चीज़ें नेचर की है जो ऑलरेडी फॉर्म्ड है, उसको आप अपने चीज़ों से प्रोसीड कर सकते हैं, आर्ट और एज वेल एज योर लिटरेचर। Now, what are the various conditions? What are the various, we can say that features in which say that the things are wrong, means things are not up to the mark that can be against the law. When we talk about your definition of this infringement, exercising rights of the copyrights owner as per Copyright Act 1957, making, distributing, exhibiting, and importing infringing copies of the work. नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन से पैरामीटर हैं जो इन्फ्रिंजमेंट को डिसाइड कर रहे हैं? योर कॉपिंग कैजुअल कनेक्शंस, subconscious copying as well as the indirect copying. These are the three major types which say that कि जब आप कुछ फॉर्म कर रहे हैं वो पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है. Substantial takings, unaltered copying, extent of defendant alteration, characters of plaintiff and defendant work, nature and extent of the plaintiff efforts. How many types and things which are there which might be factor from one to another. Strengthening copyright, enhancing the reach of the law. Means when you have a particular connection with your own work, then it will also useful form for the law to make it more reasonable. Now what are the various remedies? Copyright की अगर infringement हो गई है तो क्या क्या तीन possibility है? You can proceed with your civil as well as criminal and administrative part. या ये एक चीज आप लोगों ने देखी होगी, कॉपीराइट नोटिस. देयर इज ए नो फॉर्मल प्रोसीजर टू पुट नोटिस ऑन योर वर्क, हाउएवर इट इज स्ट्रांगली एडवाइजेबल टू रिमाइंड पीपल्स दैट वर्क इज कॉपीराइटेड एंड आइडेंटिफाइड द कॉपीराइट ओनर. आप लोगों ने ऑब्जर्व करा होगा, जैसे लिखा होता है कॉपीराइट, जैसे मैंने एग्जांपल कॉल करिए दीपक पिलाई, ऐसे ही आप जो अलग अलग कॉपीराइट का सिंबल होगा, जिस चीजों के अपने जितने आपकी फूड प्रोडक्ट्स हैं दे ऑल आर कवर्ड इन विद कॉपीराइट्स. उन सबके जो लोगो हैं, आपके मैकडोनल्ड्स की बात करें, आपके वॉक्सवैगन की बात, जितने भी आपके पर्टिकुलर थिंग्स हैं जो उनके कॉपीराइट ले ले चुके हैं, वो ऑलरेडी उनके जो रिमार्केबल थिंग्स हैं विच आर अवेलेबल, तो उनका मतलब है कि जो ऑल दी राइट्स आर रिजर्व विद दैट पर्टिकुलर बॉडी और पर्टिकुलर आपका फर्म, जो फर्म है उसका वो एक्चुअल में हकदार है. द वर्ड कॉपीराइट ऑफ कॉपीराइट सिंबल है सी, आपका द नेम ऑफ द कॉपीराइट ओनर आएगा उसमें, किस ईयर में वो हुआ है, जैसे एग्जांपल कोड कर रखी है इसके. और इसमें क्या रहेगा, चीप एंड कॉस्ट इफेक्टिव सेफ ग्राउंड है, आपके काम को बचाने के लिए बड़ा प्रोसेस इजी है, मैं आगे में बताऊंगा कैसे फाइल होगा ये. अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, आप इसको खुद भी फाइल कर सकते हो अगर आपके पास कोई अच्छा मीन्स फॉर्म ऑफ कुछ नया कंटेंट है, कोई सॉन्ग है, कोई आपको स्टोरी फॉर्म हुई है, कोई आपने भजन या कुछ तरह कुछ भी ऐसी चीज नहीं फॉर्म करी है जो आपकी हैंड रिटन है, यू हैव नॉट टेकन एनी पार्ट ऑफ देम फ्रॉम दी एनीवेयर, जो आपको लगता है कि यार ये तो प्रॉपरली मेरा पार्ट है, यू मस्ट गो थ्रू फ्रॉम दी प्रोसेस ऑफ कॉपीराइट. तो उसके लिए मैं बताना शुरू कर रहा हूँ. अगर कोई आप लोगों को क्वेश्चन होगा तो एट द लास्ट यू मे आस्क डेफिनेटली विदाउट एनी हेजिटेशन. तो सेशंस आर मोस्ट वेलकम. क्या करना है आप लोगों ने, अगर थोड़ा सा ध्यान सुनना, इट विल बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू. गूगल पे जाइए, फिल दी कॉपीराइट इन इंडिया. जब आप ओपन करोगे तो आपको फर्स्ट स्लाइड जो दिखेगी, जैसे मैंने एरो कर रखा है, कॉपीराइट ऑफिस खोलना है आपने. ये खोलने के बाद आप यू विल बी एबल टू ओपन द पेज दैट इज योर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो आईटीआर का आपका आईपीआर का पार्ट है. सबसे पहले यू हैव टू फिल द फर्स्ट, हैव टू एंटर ऑन द फर्स्ट ऑनलाइन सर्विस दैट इज योर ई फिलिंग ऑफ कॉपीराइट. क्या कहा हमने, आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन. फर्स्ट यू हैव टू प्रोसीड विद गूगल, सर्च कॉपीराइट इन इंडिया. First of all, open the Copyright Office website, your first slogan. Then fill the online service by from the e-filling of copyright applications. After this, the software may ask you your
पर्टिकुलर यूजर आईडी एंड पासवर्ड। जैसे आप लोग फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन जो भी यूज करते हो उसमें रहता है आपका पासवर्ड आईडी, ऐसे ही आपको यहाँ एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट में आपकी कुछ डिटेल्स है कि फ्रॉम विच बेसिकली यू आर, क्या आप स्टूडेंट हो, प्रोफेसर हो, किस पर्टिकुलर एजेंसी हो, फार्मेसी से हो, मेडिकल की हो, या इधर फ्रॉम आईटी, ऑल फिल बेसिक डिटेल्स इंक्लूडिंग योर डेट ऑफ बर्थ। पासवर्ड करने के बाद वो आपको वेरिफिकेशन कोड भेजेगा। अगेन जो जैसे आप नॉर्मल ऐप यूज कर रहे हो वैसे आपको करना पड़ेगा और उसको फुल करना पड़ेगा। उसके बाद ये कंप्लीट डिटेल्स बनने के बाद यू हैव टू क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन। इसमें क्या क्या पार्ट्स रहेंगे इसके, आपका फॉर्म 14 रहेगा, उसको अपने फिल करना पड़ेगा। आपको कैटेगरी फाइंड करनी पड़ेगी, क्या आपका म्यूजिकल है, आर्टिस्टिक है, ड्रामेटिक है, लिटरेचर है एंड सॉफ्टवेयर है। ये आपकी मेजर 5 की कैटेगरीज हैं, उसके फर्दर आपको प्रोसीडिंग करना पड़ेगा। क्लिक जब आप यहाँ कर दोगे फिर आपका आता है फिल दिस डिटेल। फॉर्म 14 नंबर आ गया आपका, जो एक पर्टिकुलर आपका लेटर है टुवर्ड्स दी कॉपीराइट ऑफिस को बताना पड़ेगा योर नेम, एड्रेस, पिन कोड, नेशनलिटी एज वेल एज अदर थिंग्स। ये स्टेप फर्स्ट है आपका। अब यहाँ जो आपने जिसका आपने कॉपीराइट फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल आप अगर ऑब्जर्व कर रहा हो तो मेरे काम का टाइटल क्या था, हैसियत और काबिलियत। दिस वाज माय पोएम दैट आई हैव रिटन इन दी 2022, 2 साल पहले की बात है ये। तो आप देख सकते हो एक उसकी फॉर्म जाएगा, फॉर्म 14 जाएगा, उसका सेकंड उसके पार्ट जाएंगे और इसको आपने यहाँ सबमिट करना है। यहाँ लिखा है वर्क अपलोड और डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। यस, इंपॉर्टेंट पार्ट इसका ये है, जब आप हम बात करते हैं कि सर व्हाट विल बी द कॉस्ट, व्हाट विल बी द पर्सपेक्टिव और व्हाट विल बी द थिंग्स हाउ दे कैन बी प्रोसीडिंग विद वन टू अनदर, क्या उसकी फीस रहेगी। यस डियर ऑल, द पर्टिकुलर सबमिशन फीस फॉर सेम इज ओनली ₹500। सिर्फ 500 रुपये लगता है आपका, अगर आप आपके नाम को अपडेट रहना चाहते हो। मार्केट में बढ़ रहे हैं वो आपसे 2000 ही और शी में आस्क, आस्क, क्योंकि आप लोगों को जानकारी नहीं होगी तो कितना भी मांग सकते हैं। वो डिपेंड करता है, उनका वो प्रोफेशन है। अगर आपको नहीं आता यू कैन प्रोसीड विद द एक्सपर्ट आल्सो। तो यहाँ हर चीज की एक डिफाइंड अमाउंट दे रखी है। अगर आप साउंड रिकॉर्डिंग को चाहते हो करवाना कॉपीराइट, उसके लिए 10,000 रुपये है आपका। कोई फिल्म है आपको उसके लिए 2000 रुपीज है। तो उसके डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी के लिए, किस प्रोसीडिंग के लिए कहाँ काम कर रहे हो। यस, ये तो हो गया, हम लोगों ने कॉपीराइट फाइल कर दिया। अब आप नेक्स्ट थिंग इज कि जैसे आप देखते हो कि स्टेटस क्या है, आपने फाइल कर दिया। अब हमें देखना है कि गवर्नमेंट के पास तो पहुंच गया है, लेकिन वो रुका कहाँ है। आपको एक नंबर मिलेगा जिसे हम बोलते हैं डायल नंबर, आपने यहाँ पुट करना है और एंटर करना है स्टेटस के ऊपर, उसके बाद आपको शो हो जाएगा। तो ये आपके दिख रहे होंगे, कुछ पार्ट्स में काम होता है। पहले जब सबमिट करोगे तो ऊपर लिखा आएगा वर्क अवेटेड कि वेट कीजिए। सेकंड वेटिंग में आएगा, पेमेंट एक्सेप्ट की जाएगी। थर्ड में होगा डॉक्यूमेंटेशन, जिस प्रोसेस पे होगा आपको लिखा आ जाएगा। एंड लास्ट पे होगा आपका हियरिंग। अगर कोई उनको सवाल है, क्वेश्चन है उन एक्सपर्ट्स को, तो आपसे पूछ लेंगे थ्रू ईमेल कि ये बताइए आपने कहाँ से लिया या आपका नहीं है। अगर आपके काम का ऑलरेडी उनके पास कोई ऐसा एविडेंस मिला, ऐसा कोई सबूत मिला उनको जिससे ये कंफर्म हो रहा है कि वो काम जो आप चाहते हो उसे कॉपरेट करवाना है लेकिन वो आपका नहीं है, तो डेफिनेटली वो आपको क्लेम करेंगे कि नहीं ये आपका नहीं, इसका पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो लास्ट पे जब वो उनको पूरा आप रेक्टिफाई कर दोगे विद द हेल्प ऑफ प्रूफ्स कि ये आपका ही है, तो वो आपका सर्टिफिकेट रजिस्टर हो जाएगा, जिसे बोलते हैं आरओसी, दैट इज रजिस्टर्ड बाय द सेंटर ऑफ रजिस्टर पोस्ट। पहले था पोस्ट कर रहे थे, आजकल वो पोस्ट नहीं करते, आपकी ईमेल पे आपको लेटर आ जाता है, आप उसका प्रिंट निकालो और दे आर ऑलरेडी वेरीफाइड बाय योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नो इशू। उनमें सिंपल राइटली सब लिखा है गवर्नमेंट का। थिंग्स आर वेरी इजी। जैसे मैंने एक यहाँ देखिए, मैंने नंबर भरा जो मेरे कॉपीराइट का था और मैंने स्टेटस चेक करा, तो क्या लिखा आ गया, वहां लिखा आ गया स्टेटस री स्क्रूटनी मींस एप्लीकेशन इज अंडर प्रोसेस अगेन विद रिप्रेजेंटेटिव। इसका मेरे को कमेंट आया था। कमेंट ये था कि जिस उस टाइम में एट दैट टाइम आई वाज असिस्टेंट प्रोफेसर, क्वेश्चन ये था कि जो आप कंटेंट भेजा है इसका आपके कॉलेज को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, either they are having issue or not। I then I have prepared a letter from the official from our management
उसमें लिख दिया साफ कि वी हैव नो इशू इफ डॉक्टर अमनदीप सिंह इज विलिंग टू पब्लिश देयर कंटेंट बिकॉज दिस कंटेंट इज बिलोंग्स टू ओनली डॉक्टर अमनदीप सिंह। ओके, तो उसको मेरे वो पब्लिश हो गया, उसके बाद अब मेरे उसको सर्टिफिकेट जनरेट हो गया। यस, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, मार्केट वैल्यू एज ए इनोवेटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। पहली बात तो ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप तब आएगी व्हेन यू हैव लर्निंग एबिलिटी, व्हेन यू हैव थिंग्स व्हिच आर गोइंग विद योर पर्टिकुलर थिंग्स। इनकम भी आएगी और कस्टमर सेटिस्फाई कब होगा, सेटिस्फाई कब होगा, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता रहा हूँ कि आईपीआर का अगर मैं अपने इस डोमेन में जाना है तो डोमेन में क्या क्या चीजें हैं। आप, मैंने जो बताया आपको, कॉपीराइट का आप लोगों का एज ए बन सकते हो, एजेंट बन सकते हो, ठीक है। आपको ये कन्फर्म हो गया कि कितनी फीस है इसकी, सिर्फ 500 रुपए है। Either it depend upon your IQ, depend upon your circle, you may ask for the 2000 rupees for the submission। तो अगर आप 2000 रुपये पर कॉपीराइट ले रहे हैं तो आपको 1500 की आपकी सेविंग होगी पर हेड। ऐसे ही अगर आपका पेटेंट है, प्रोसेस पेटेंट की बात करते हैं जिसमें कुछ मान लीजिए कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट, किसी बच्चे ने काम करा मास्टर डिग्री का, कुछ नई रिसर्च है, उसको वो चाहते हैं कि हमने गवर्नमेंट से पब्लिश करना है, हमारी जो रिसर्च को वो बचाना है एटलीस्ट फॉर 20 ईयर्स। तो उसमें जो उसकी फाइलिंग फीस है दैट इज योर 1500, सिर्फ इतने अमाउंट है। तो उसकी लोग जो मार्केट में अमाउंट ले रहे हैं दैट इज 8000, 10,000, 12,000, डिपेंड अपॉन दी नेम, कितने आप पुराने हो। तो अगर आप 8-10 हज़ार रुपए भी वहां से ले रहे हो तो इट विल बी आल्सो गुड सोर्स फॉर द सेम। तो थिंग इज यू हैव टू लर्न वेरी केयरफुली, यू हैव टू लर्न थिंग्स विद डेडिकेशन वे। तो डियर ऑल, ये मेरे कुछ पिछले साल के मेरे उसमें 5 डिजाइन पेटेंट है लगे हुए, आपको देख सकते हो। 2 मेरे प्रोसेस पेटेंट है जिसको हम अपने यूटिलिटी पेटेंट भी कहा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मेरे रजिस्टर्ड है। ये जो 5 डिजाइन है इसमें अलग अलग 5 मैंने डिजाइन करी डिवाइस। कोई आपके एंजाइम को एस्टिमेट कर रहा है, कोई सर्वो कर रहा है, मतलब इसमें से वो डिवाइस है जो अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। वो डिवाइस है जिनको बनाने में लेबोरेटरी के सेटअप्स को इजी हो रहा है, कुछ प्रोसेस को इजी कर रहा है। नीचे वाले जो है वो दैट इज कंसर्न विद द सर्च वर्क, कुछ नया मल्टी मॉलिक्यूल फाइंड करा हमने, उसको फाइंड कर दिया। तो एज गिवन इन द बॉटम आल्सो ईयर वाज 2022 to 3। तो ये डियर ऑल मेरे पिछले साल के कॉपीराइट्स हैं, आप देख सकते हो। आई थिंक इट इज टोटल 9, यस टोटल 9 कॉपीराइट रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भी लास्ट ईयर के हैं। इस साल की बात करें तो आई हैव ऑलरेडी फाइल्ड 5 to 6 कॉपीराइट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट विल बी पॉसिबली इन द अपकमिंग मार्च ऑफ दिस नेक्स्ट ईयर। पॉसिबल है कि वहां तब तक वो आ जाएंगे। तो ये कुछ मैंने विलिंगली न्यूज़पेपर कटिंग डाल रखी है, जो मेरे डिजाइन पेटेंट्स न्यूज़ में कवर हुए हैं उसके मैंने कवरेज एक डाल रखी है। ये आप लोगों की यूनिवर्सिटी के साथ मेरी एक प्रीवियस मेमोरी है। आपके एक फार्मा करिकुलम हुआ था सिटी यूनिवर्सिटी में, एट दैट टाइम आई वाज इनवाइटेड बाय अवर वर्दी डॉक्टर वीर विक्रम सर। मेरे को इमेज दिखी तो मैंने विश को डाल दी। तो अब क्वेश्चन इज, हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योर की, हम बात करते हैं कि कुछ एक्सपेंडिचर बन जाए। तो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एनालाइज आवर सेल्फ। मैंने एक जहाँ ड्रॉ कर रखा है, आप लोग उसको फोकस कीजिए। क्या है लिखा मैंने, हाउ मच, पहले मैंने क्या बताना चाह रहा हूँ, टारगेट। टारगेट है बट जो आपका प्रोसीडिंग वर्क है दैट इज नॉट अप टू योर डायरेक्शन। मैंने क्वेश्चन फिल करा यहाँ, हाउ मच मार्क्स यू विल गिव टू यू योर सेल्फ आउट ऑफ 10। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा कि सर मैं आईपीआर का एजेंट चाहता हूँ बनना, मैं, मेरा मानना है कि मैं आईपीआर को एजेंट बन जाऊँ। अब क्वेश्चन ये है कि उसके लिए कितने एफर्ट्स कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपने टारगेट बनाया कि सर मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का एजेंट बनूंगा। अब उसके लिए क्या क्या एफर्ट्स हैं, एफर्ट्स तो ये है, वी शुड हैव ए गुड लर्निंग स्किल विद योर कॉपीराइट्स, विद योर पेटेंट्स एंड देयर बेसिक्स आल्सो। हमें पहले खुद फाइल करने पड़ेंगे, वी हैव टू शो सेल्फ। तो वहां मैंने क्वेश्चन लिखा है आप सब लोगों के लिए, हाउ मच मार्क्स यू विल गिव आउट ऑफ 10। क्या जो आपने टारगेट्स फाइंड करे हैं, अपने अचीव, जो भी आपने अचीव कर रहे हो उसके लिए काम कर रहे हो। अगर तो कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो you are just in a we can say that in a trouble, you will not able to proceed your success very easily. How much marks you get, okay, oh passing marks, that is the grade,
अगर आपने अपने आप को फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ 10 मार्क्स दिए कि सर मैं बहुत अच्छा जो मेरे टारगेट्स है उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, तो आपने पर्सनल के लिए स्किल बनाया 10 मार्क्स का, तो उसमें से आप आपको अपने आप को 5 मार्क्स दे रहे हो, तो यू हैव टू वर्क मोर so that you can proceed with your targets, with your goals in a very desired manners. Otherwise, it's very difficult to proceed. So, dear all, this is I think last slide of my presentation. So, thank you so much for your wonderful time as well as your all things. So, ma'am, I request to you if anybody have any query. Our respected Sanjay sir. Yes, ma'am. Thank you very much, sir, for a wonderful presentation on ERP. Not in ERP, IPR, sir. So once again, thanks a lot for your time, and students were really interested. And even though I joined in between, but it was really a wonderful session, sir. So we look forward to your sessions times and again, sir. So we will invite you once again for offline, sir. We would like to visit our campus and interact with the students, sir. So Definitely, sir. It is a great privilege to hear to you, sir. It's my privilege. So I thanks to you, sir, for your kind words. So I will try to do my best. So dear all, I have shared my email ID as well as WhatsApp number also. If you have any query regarding your copyrights, regarding your patents, regarding your design patents, you can discuss with me. You can share with me. So. I would like thanks to Mr. Sanjay Tori sir, Registrar, Director, IQSC Cell, Riti Sharma ma'am, that is from Planning and Development Department. So thank you to the entire team of City University as well as dear students. Your suggestions are most welcome. I again say, if you have any query, you can ask me, you can discuss with me. It will be happy for me. So thank you so much, ma'am. Yes, ma'am. Any query from student side? Ritika ma'am, Any any que- query from student any side? any question, students? Any question? I think no. It's okay. Thank you so so right, sir. much, sir. Once again, Thank you thanks so a much lot, sir. for the session. Thank you so much, sir. Thank you so much. Have a nice day. Thank you. Thanks a lot, Thank sir. you, Thank you sir. very much, sir. Thank you. Thanks a lot, sir, for a wonderful session. Thank you, sir. Thank you, everybody. Thank you so much.